خدا کی سلامتی ہم سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں. آمین آمین. آج کا حوالہ جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے پڑھا گیا ہے. بھائی نے بڑی خوبصورتی سے عبادت کو چلایا ہے اور خوبصورتی سے پرستش کو کیا گیا ہے. ہم خدا کے شکر گزار ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سامنے رہتے ہیں لیکن پیچھے بھی چند زندگیاں خدمت انجام دیتی ہیں جو سامنے تو نہیں آتی، نہ ان کا پتہ چلتا ہے. سو ہم ان کے لیے بھی خدا ان کے شکر گزار ہیں جو بھائی کیمرے پہ ساؤنڈ پہ خدمت کا کام جو ہے وہ انجام دیتے ہیں. آج جو ہے وہ ہم وقت کے تعلق سے چند باتیں جو ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. ٹائم کے تعلق سے جو حوالہ پڑھا گیا ہے 3 آیات ہیں، اس لیے میں ایک دفعہ پھر سے ان کو پڑھ دیتا ہوں. افسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط ہے اور اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 15ویں 16ویں اور 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے: پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانی چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہے. آمین آمین. سو آج جو ہے ہم وقت کے تعلق سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ دیکھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں. مجھے اور آپ کو پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ بائبل مقدس میں کافی دیر سے اس کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہوں اب اور بات کر رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جب زمین پہ آئے تو ان کا مقصد کسی بھی طور پہ کوئی مذہب قائم کرنا نہیں تھا. مسیحت مذہب نہیں ہے، میں نے اور آپ نے مل کے اس کو مذہب بنا دیا ہے. بائبل مقدس مسیحت کی جب بات کرتی ہے تو وہ ریلیجن کی بات نہیں کرتی ہے. ہم جس کو فالو کرتے ہیں خدا یسوع المسیح کو، انہوں نے مذہب کی کبھی بات نہیں کی. خدا یسوع مسیح کی سب سے زیادہ جو دشمنی رہی وہ کن کے ساتھ رہی؟ مذہبی لوگوں کے ساتھ. ان کی مذہبی لوگوں کے ساتھ کبھی بن نہیں پڑی، وہ سنکرونائز نہیں ہوئے مذہب کے ساتھ کیونکہ خدا یسوع مسیح مذہبی تھے ہی نہیں. اس لیے انہوں نے کبھی مذہب کی نہ مرادی کی، نہ اس کو انکریج کیا، نہ اس کو پریزنٹ کیا اور نہ کبھی اس کے ساتھ انہوں نے ایک ہونے کی کوشش کی. اس لیے اس وقت کی سنہدرین جو ہے اس میں خدا یسوع مسیح جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. ان کے لیے وہاں پہ کوئی جگہ بھی موجود نہیں تھی اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس بات کی کوشش کی. خدا یسوع مسیح جب اس زمین پہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا وقت جب ہو گیا کہ وہ اپنی خدمت کو شروع کریں، تو خدمت کو جب انہوں نے شروع کیا تو کیا کہہ کے انہوں نے مرادی کرنا شروع کی؟ توبہ کرو. کیوں؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہی آ گئی ہے، نزدیک آ گئی ہے تمہارے. اور پوچھے کون ہے وہ بادشاہی، کہاں پہ ہے؟ تو خدا یسوع مسیح نے کہا میں وہ بادشاہی ہوں. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، جس نے مجھے چھوا اس نے باپ کو چھوا. اور خدا یسوع مسیح وہ بادشاہی تھے اور انہوں نے بادشاہی میں آنے کی دعوت دی. خدا یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کتنے دن وہ چلتے پھرتے رہے؟ شاباش، 40 دن تک. اور ان 40 دنوں میں کس بات کی پریچنگ کی انہوں نے؟ پڑھیں میرے ساتھ، کوئی حوالہ پڑھے. اعمال کی کتاب ایکٹ چیپٹر 1 ورس 3، جلدی سے جو پہلے نکالے وہ پڑھ دے.
एक्ट चैप्टर 1 और 3 को पढ़ें और उसमें आपको पता चलेगा कि खुदा यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन इस जमीन पर फिरते रहे, वो उनकी आखिरी मीटिंग कहने आप, और उसमें उन्होंने बताया कि वो क्या करते रहे। उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। थर्ड वर्स। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। 40 दिन तक उनको नजर आता रहा, और जी उठने के बाद 40 दिन तक ये रिकॉर्ड किया गया है इलाम के अंदर कि वो 40 दिन तक उन्हें खुदा की बादशाही की तालीम देता रहा। और आज लोग जो है वो मजहब के अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए उनको खुदा नजर नहीं आता, इसलिए वो गुनाह भी कर सकते हैं और मजहब भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा के साथ की इनकाउंटर नहीं है। और इसलिए खुदा यीशु मसीह ने, चूंकि ये सबसे जरूरी बात थी मसीह के एजेंडे के अंदर, खुदा की बादशाही, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि पहले तुमने किस चीज की तलाश करनी है? पहले तुमने ये तलाश नहीं करनी कि मैंने कुर्बानी कहाँ चढ़ानी है, पहले ये तलाश नहीं करना कि यहाँ सिनेगोग का जो है वो रब्बी कौन है, यहाँ पे कौन रहता है, क्या रिचुअल किया जाए, मूसा का, नहीं। खुदावन यीशु मसीह ने कहा पहले तुमने खुदा की बादशाही की तलाश कर। This is the most important thing and this is the last thing you are doing while you die. मरते हुए आखिरी काम जो मैं कर रहा हूं, आखिरी काम जो आप कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए कि खुदा की बादशाही की तलाश हमारी जिंदगी में। जब हम इस जगह पहुंच जाएंगे तो फिर मैं और आप खुदा को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे, फिर मैं खुदा के साथ, आप खुदा के साथ, हम सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाएंगे, हमें खुदा की समझ लगेगी, खुदा को आपकी समझ लगनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मुझे और आपको ये जानना और समझना जरूरी है। आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि मैं मर जाऊं। मौत आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि बगैर मकसद के जिंदगी गुजार देना पूरी की पूरी, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और लोग कहते हैं सबसे बड़ी ट्रेजेडी हो गई, फलां शख्स की डेथ हो गई, फलां शख्स मर गया। जी ये भी ट्रेजेडी है, लेकिन इससे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि किसी शख्स ने 10, 20, 30, 50, 70, 80 साल जिंदगी गुजारी है और बगैर किसी पर्पस के गुजार दी है, उसको खुदा की पूरी जिंदगी समझ नहीं लगी। दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी देन द डेथ। ये मौत से भी बड़ी ट्रेजेडी है, मौत से बड़ा साया, मौत से बड़ा हादसा है कि पूरी जिंदगी मकसद ही मेरे और आपके पास ना हो, और मैं और आप इसको समझने और इसको जानने में फेल हो जाए। फेलियर क्या है? फेलियर फेल होना नहीं है। फेल होना तो बहुत अच्छी बात है, जब आप कुछ करते हैं या आप कामयाब हो जाते हैं या आप क्या होते हैं, नहीं, नाकाम कभी नहीं होते, यू नेवर। या आप कामयाब हो जाते हैं या आप उससे कुछ सीख लेते हैं। फेलियर ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं, ये चीज फेलियर में नहीं आती। सबसे बड़ा फेलियर ये है कि कोई शख्स किसी गलत चीज में कामयाब हो जाए, कोई शख्स किसी गलत डायरेक्शन में कामयाब हो जाए, ये उससे भी बड़ा फेलियर है। आज दुनिया के लोग, उनमें बड़े बड़े मिलियनर आ सकते हैं, बिलियनर आ सकते हैं, एक्टर आ सकते हैं, एक्ट्रेसेस आ सकती हैं, बड़े बड़े सिंगर्स आ सकते हैं, म्यूजिशियंस आ सकते हैं, यू कैन नेम देम। आप दुनिया के बड़े बड़े लोगों के दरमियान और दुनिया के वो लोग जो अपने आप को फेलियर के दर्जे पे समझते हैं, उनके दरमियान आपको
कामयाब हो गए। जब वो कामयाब हो जाते हैं, कामयाबी की बुलंदियों को छूते हैं, they realize they have reached nowhere। वो अपने आप से दुश्मनी पे उतर आते हैं, वो अपने आप के साथ ज्यादती शुरू कर देते हैं, वो जानबूझ के ऐसी महफिलों में, ऐसे ड्रग्स में, ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अपने आप से बदला लेते हैं। उनमें और एक बिल्कुल फेलियर शख्स में कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा। आप उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ के देख, नहीं मुझे कहना नहीं चाहिए, आपको पहले पता होंगी बहुत सी लाइफ हिस्ट्री। सो फेलियर फेल होना नहीं है। फेलियर क्या है? किसी गलत चीज में आप कामयाब हो जाए, ये सबसे बड़ा फेलियर है। सो मुझे और आपको इन चीजों से बचना है, और मुझे और आपको इन चीजों से महफूज रहना है, ताकि हम प्रोग्रेस करें, हम कामयाब हों। और कामयाब आप कब होंगे? मैं कब होऊंगा? जब हम, अभी हमने क्या पढ़ा है, वक्त को गनीमत जाने। जब हम वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे, वक्त का वो इस्तेमाल करेंगे जो बाइबल मुकद्दस सिखाती है, तो हमारी जिंदगी में कामयाबी आएगी। अगर हम वैसे नहीं करेंगे तो फिर कामयाबी नहीं आ सकती। फिर हम मेहनत कर सकते हैं, आप याद रखें कि मेहनत जो है वो कामयाबी की जमानत नहीं है। मेहनत तो डाकू भी बहुत करता है, मेहनत तो कसबी भी बहुत करती है, मेहनत तो चोर भी बहुत करता है, जो फ्रॉड करना चाहते हैं वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, बैठते हैं, सिर खपाते हैं, प्लानिंग करते हैं, जुनत करते हैं। हर कोई मेहनत की बात नहीं है, डायरेक्शन की बात है। आप उस चीज में कामयाब हो गए हैं, ये कामयाबी नहीं है। हो सकता है आप जिस चीज में कामयाब हुए हैं वो सबसे बड़ा फेलियर है, आपको भी रियलाइज नहीं हो रहा। बहुत से लोग जब जिंदगी में तरक्की कर रहे होते हैं, हम जब थोड़ी बहुत तरक्की कर रहे हैं, मेरे जिंदगी में एक ही बात रहती है, हम खुदा से दूर ना चले जाएं। खुदा के लिए हमारी कमिटमेंट, खुदा के लिए हमारा वक्त, खुदा के लिए हमारी सोच, खुदा के लिए हमारी जो सारी चीजें हैं उनमें कमी वाक़या ना हो जाए। कामयाबी ये बड़ी सेंसिटिव बात है, उसको ग्रैब करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये क्या है? बहुत से लोग कामयाबी की दौड़ में इतना सरपट दौड़ते हैं कि जब वो कामयाबी की पीक पे, बुलंदी पे, चोटी पे पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, सिवाय इसके कि वो चोटी से छलांग लगा के जान बहक हो जाएं, वो अपनी आप को हलाक कर दें। They have reached nowhere। सो इसलिए सिर्फ कामयाब नहीं होना है, सिर्फ कामयाबी टारगेट नहीं है, सिर्फ दौड़ना, सिर्फ मेहनत करना टारगेट नहीं है। ये सब कुछ हमने करना है। ये अभी मैं आपको ग्राउंड बता रहा हूं, इसकी डायरेक्शन की बात है। डायरेक्शंस कहां से आपको मिलेगी? बाइबल मुकद्दस के अंदर से। अगर आपको खुदा नहीं मिल रहा तो कहां मिलेगा आपको? बाइबल मुकद्दस के अंदर। अपनी बाइबल में जाएं, यू विल फाइंड योर गॉड देयर। वो आपसे बोलेगा, आपसे कलाम करेगा, आपको बताएगा, आपको समझाएगा, आपको डांटेगा, आपको प्यार करेगा, आपको ढांस देगा, दिलासा देगा, मरण करेगा, सब कुछ करेगा। वो जाए तो सही, आप जाते ही नहीं। मैं डॉक्टर के पास ना जो मुझे शिफाई नहीं मिल रही, क्योंकि भैया आप जा ही नहीं रहे, डॉक्टर के पास कैसे मिलेगी? सो मुझे और आपको इस चीज को जो यहाँ पे बाइबल मुकद्दस बता रही है कि वक्त को हमने क्या जानना है? गनीमत जानना है। हिंदी का क्या लफ्ज पढ़ा था हमने वक्त को गनीमत जानने के? बहुमूल्य। सॉरी, बहुमूल्य। बहुत ज्यादा मोल है इसका शब्द, बेशकीमत है, अनमोल है, ट्रेजर है, खजाना है, कीमती है। ये इस कदर कीमत है इसकी। आपकी जो जिंदगी है वो असल में है क्या? आपकी जिंदगी वक्त है। आपने कभी इसको रियलाइज किया है कि आपकी जिंदगी क्या है? वक्त है। नैमी, आपकी एज क्या है? व्हाट इज योर एज? 11।
किसी और की। बेटे आपकी क्या एज है? 13 साल का। हम जब एक दूसरे की एज, बाबू जी आपकी क्या एज है? 82। जब आप एज पूछते हैं तो पता लगता है ये 11 का, 13 का, 82 का, 50 का है। तो जब हम ये बता रहे हैं हमारी एज है, तो असल में हम एज नहीं, वक्त बता रहे हैं। डोंट यू रियलाइज? आप जिंदगी नहीं बता रहे अपनी, आप अपना टाइम बता रहे हैं। वक्त जिंदगी है। इसलिए खुदावंद के कलाम में, इल्हाम में यह लिखा गया है कि वक्त को गनीमत जानो, टाइम की कदर करो, टाइम को कैलकुलेट करो। क्या कर रहे हो तुम? आप क्या कर रहे हैं जिंदगी के अंदर? आप अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, ये समझना और ये जानना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कुछ भी आपके पास है या जो कुछ आपके पास नहीं है, वो इस वजह से है कि आपने अपना टाइम कैसे यूटिलाइज किया है, आपने अपना वक्त कैसे स्पेंड किया है। अगर आपने उसको ठीक स्पेंड किया है, डायरेक्शन ठीक है, सम ठीक है, तो फिर ठीक हो जाएगा। अगर नहीं तो यू लूज। और अगर आप लूज ना भी करें, आप कामयाब होके लूज कर सकते हैं। आप कामयाब हो जाएं एंड आफ्टर दैट यू रियलाइज बेसिकली आई गॉट नथिंग, कुछ भी नहीं मिला मुझे, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सो इसलिए हमें कलाम में जाना है। बाइबल मुकद्दस जो है वो मुझे और आपको ट्रेन करना चाहती है। बाइबल मुकद्दस हमें उस जगह पे लेके आना चाहती है ताकि हम खुदा की रूह के साथ उन चीजों को अंडरस्टैंड करें जिंदगी की जिनकी वजह से हम डिस्टर्ब हो सकते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं या डिस्टर्ब हैं। उनमें से निकलने के लिए हमें कलाम की जरूरत है। और खुदा यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज कि तुमने पहले किसकी तलाश करनी है? खुदा की तलाश करनी है। और वो कहां पे मिलेगा? अपनी बादशाही के अंदर। आपने किसी को मिलना है, कहेंगे आप उसके घर चले जाए, गो टू द किंगडम एंड देयर यू विल फाइंड गॉड। सो मुझे और आपको इन चीजों को समझना है, मुझे और आपको इन चीजों को जानना है कि वक्त जो है, मेरी जिंदगी जो है, बेसिकली ये टाइम है और मैं इस टाइम को कैसे स्पेंड कर रहा हूं। और दूसरी बात जो वक्त है, जिसकी बात की है कलाम ने, वक्त को गनीमत क्यों जानना है, कीमती क्यों समझना है वक्त को? क्योंकि वक्त असल में करेंसी है। जब आप जॉब पे जाते हैं तो आप क्या देते हैं? यू गिव योर टाइम। और तो कुछ भी नहीं आपके पास देने के लिए। आप अपना वक्त लेके चले जाते हैं, कहते हैं जी मेरी जिंदगी के जो आज का दिन है या अगले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं अपनी जिंदगी का अगले साल के रोज के मंडे टू फ्राइडे 8 घंटे आपके नाम करता हूं। वो कहते हैं अच्छा चलो तुम अगले पूरे साल के लिए मंडे टू फ्राइडे एवरी डे 8 hours 40 hours इन अ वीक मेरे नाम करते हो, तो मैं आपको इसके बदले में 30,000 रुपया या 40,000 रुपया, व्हाट्सएप आपके वो एक सैलरी मिल जाती है। बेसिकली टाइम आपकी जिंदगी में करेंसी है। तो करेंसी से आप क्या करते हैं? आप बाय करते हैं चीजों को, आप चीजों को खरीदते हैं अपनी जिंदगी के लिए। सो मुझे और आपको यह समझना जरूरी है कि जिंदगी जो है वो आपका टाइम है और टाइम जो है वो आपकी करेंसी है जो खुदा ने आपको प्रोवाइड की है, खुदा ने आपको दी है और इससे जो है आप जो है वो सब कुछ खरीदते हैं। और जो चीज आप खरीदते हैं, जिस चीज के ऊपर आप अपनी करेंसी, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उससे पता चलेगा कि मैंने जिंदगी पानी है कि मैंने मौत पानी है। अब मैं अपने टाइम को जो है वो नशे पे खर्च करना शुरू कर दूं,
और छुप छुप के ओवर डोजेस लेना शुरू कर दूं तो क्या हो जाएगा, मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। मेरी डायरेक्शन ठीक नहीं, मैं अपना जो करेंसी है उसको गलत जगह पे यूज कर रहा हूं, अपनी लाइफ, अपना टाइम, आई एम डूइंग रॉन्ग विद इट, और वो डिटरमिन करेगी कि मैं जिंदगी पाऊंगा कि मैं मौत पाऊंगा। सो इसलिए कलाम कहता है कि खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो क्या चाहता है खुदावन, कि तुम क्या पाओ, जिंदगी पाओ। छोटी मोटी जिंदगी, कसरत की जिंदगी। मैंने एक दफा पहले भी बताया था, आप उसको एक छोटी सी जिंदगी देते हैं, एक छोटी सी जिंदगी देते हैं, 70-80 साल भी पता नहीं हमने जीना है कि नहीं जीना 70, वी डोंट नो, नो वन नोस। आप अपनी छोटी सी जिंदगी देते हैं खुदा को, और वो रिटर्न में आपको बहुत सी जिंदगियां देता है। कितनी जिंदगियां? कसरत की। कसरत का मतलब है काउंटलेस। हम आप उसको 70-80 साल की जिंदगी देते हैं, वो हमें अपनी जिंदगी देता है जो कभी खत्म नहीं। वो आपको एक दफा जिंदगी वापस नहीं करता कि मैं 50 साल में अगर मार दूंगा तो 50-100 साल में जिंदा रहूं, 200 साल रहूं। नो 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 नो, काउंटलेस, टाइमलेस, क्योंकि इज द किंग ऑफ द किंग्स। वो जब आपको रिटर्न करता है, वो अपनी ग्रेस से करता है, वो अपनी जनाब से जब करता है, वहां पे सब कुछ मिरेकलस है, वहां पे सब कुछ मैजिकल है, और वो आपके खाते में डाला जाता है। सो मुझे और आपको खुदावन के हुजूर में जाना है, दुआ में जाना है, कलाम में जाना है, अंडरस्टैंड करना है। मुझे और आप याद रखें, खुदा इक्वली ट्रीट करता है। जिंदगी उसने दी, सबको वक्त दिया, सबको दिया। मेरा हर रोज पूरी दुनिया के इंसानों को एक सी करेंसी खुदा देता है, और उस करेंसी का नाम क्या है? 24 घंटे। इक्वली सबको देता है। सबके पास हर रोज 24 घंटे उनके पास खुदा की तरफ से गिफ्ट के तौर पे मिलते हैं। जब मैं अपनी आंख खोलता हूं, मैं सेहतमंद हूं, ठीक हूं, फर्स्ट क्लास हूं, एंड इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड कि आज के 24 घंटे मुझे मिल गया। मुझे नहीं पता अगले मिलने हैं कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि अगला घंटा भी मिलना है कि नहीं। ये 24 घंटे, पूरा दिन जो मुझे मिला है और रात मिली है, ये खुदा की तरफ से गिफ्ट मुझे मिला। ये पूरी दुनिया के इंसानों को मिलता है। आगे डिपेंड करता है कि वो इस करेंसी से खरीदो फरोख्त क्या करते हैं 24 घंटों में। सबको एक सी करेंसी खुदा देता है, लेकिन बाद में 24 घंटों के बाद नतीजा फर्क होता है। हर एक का रिजल्ट फर्क होता है, हर एक के पास फर्क जो है नताइज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे खरीदो फरोख्त फर्क तरीके से करते हैं। मुझे और आपको बाइबल मुकद्दस कहती है, वक्त को गनीमत जानो। वक्त कीमती है, ये खजाना है जो खुदा ने आपको दिया है, आपको इसको टेक केयर करना है। हमारी जिंदगी में अगर रिमोट कंट्रोल हो, हमारे हाथ में रहता है, वैसे घरों में रिमोट कंट्रोल के ऊपर सबसे कम यूज किया जाने वाला बटन कौन सा? ऑफ। आप अपने रिमोट कंट्रोल चेक करना चाहते हैं, सारे बटन घिसे होंगे। सबसे फ्रेश बटन जो होगा, जो घिसा नहीं होगा, वो होगा रेड बटन जो ऑफ का होता है। हम हार्डली उसको टच करते हैं। आप याद रखें कि जिंदगी में ये जो नेट है और जो दूसरी चीजें हैं, इन्होंने हमारी जिंदगियों को खा लिया है। हमारे पास उनको ट्रीट करने का, डील करने की कोई प्लानिंग नहीं है जिंदगियों के अंदर। दे आर बैडली इन्वॉल्व्ड। कोई शेड्यूल नहीं है उनके पास उन चीजों के लिए। चोरी कर रहा है इंटरनेट आपकी करेंसी को, और वो क्या है? वक्त। और वक्त जो आप उसको दे रहे हैं, वो क्या? आपकी लाइफ है। लाइफ जो है वो वक्त है, और वक्त आपकी करेंसी है, और ये सारी करेंसी आप नेट को दे रहे हैं। हम कैसे सक्सेसफुल होंगे? हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हम प्रोग्रेस नहीं
सकते हैं। हम वक्त को गनीमत नहीं जान रहे। हमारी जिंदगी में कोई भी चीजें जो है उनका सेटअप नहीं है, कौन पहले है कौन सी चीज बाद में है। जब ऐसे होगा तो याद रखें कि मुझे और आपको नाकामी होगी। आप नेट पे जिन लोगों को देख रहे हैं कंटिन्यू घंटों के हिसाब से, आप क्या कर रहे हैं? असल में एक्चुअली आप उन लोगों को कामयाब बना रहे हैं और अपने आप को नाकाम बना रहे हैं, क्योंकि आप सारी इन्वेस्टमेंट अपनी उनके खाते में डाल रहे हैं। उनको रेटिंग मिल रही है, वो उनके रेटिंग ऊपर जा रही है और सब कुछ हो रहा है। उन्होंने एक दफा काम किया, कुछ पैसे लगाए, कुछ एक्टिंग किया, रख दिया, आप उसे बूस्टअप कर रहे हैं, आप उन्हें जिंदगी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो रिटर्न में आपको क्या कर रहे हैं? फेलियर। वो आपको फेलियर आपकी जिंदगी में लेके आ रहे हैं। सो मुझे और आपको वाइजली जिंदगी गुजारनी है, हिकमत का इस्तेमाल करना है, वक्त को गनीमत जानना है। अगर हम वक्त को गनीमत नहीं जानेंगे तो याद रखें कि हमारी जिंदगी में बहुत कुछ पीछे रह जाएगा। हमें मालूम होना चाहिए कि डेली लाइफ में आप इसे एक्सपीरियंस करते होंगे, कुछ चीजें जो आपको पता है ये बहुत जरूरी है, ये करनी है, लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा उसको करने के लिए, तो आप क्या करते हैं? आप एक और अच्छी चीज, मुनासिब चीज उसकी जगह कर लेते हैं। आपको पता है मुझे दुआ करनी चाहिए, मुझे बाइबल पढ़नी चाहिए, आपको ये बखूबी मालूम है, लेकिन आप उसकी जगह कोई और अच्छी चीज करना शुरू कर देते हैं। किसी बच्चे के कोई कपड़े धोने शुरू कर दिए, कपड़ ठीक करने शुरू कर दिए, रोटी पकाने शुरू कर दी, काम पे फोन का व्हाट्सएप करने में, उसकी जगह तो जो अच्छा काम आप पहले अच्छे काम की जगह कर रहे हैं, वो दूसरा अच्छा काम बुरा हो जाता है खुदा की नजर। इसलिए कलाम में लिखा है कि जो बेहतरीन चीजें हैं इंसान की, वो भी खुदा की नजर में मकरूह हो जाती हैं, नापाक हो जाती हैं। वो खुदा उनको पसंद नहीं करता, जब पसंद नहीं करता तो ब्लेस कैसे कर सकते? इसलिए हमें प्रायोरिटीज को सेटल करना है। पहली चीज को पहले आना चाहिए और दूसरी चीज को दूसरी जगह पे आना चाहिए। आज मुझे पता था लोग कम होंगे, बहुत सी फैमिली जो रेगुलर बीमार हैं, लेकिन मैंने अपनी तैयारी वैसी की है, कलाम वैसी बैठा हूँ, वैसी खुदा के जोर में झुका हूँ जैसे मैं अगर यहाँ पे ज्यादा लोग हों तो उस वक्त तैयारी करूँ। इट डजंट मैटर कि कौन आता है कौन नहीं आता, सबसे बड़ी बात क्या मैटर करती है? कौन आया है? खुदा के दरमियान है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके दरमियान मौजूद। अगर आप इसलिए चर्च मिस कर देते हैं, फलां शख्स नहीं होगा या कम लोग होंगे, व्हाट अ फुलिश आइडिया। इससे ज्यादा हम खाना आइडिया नहीं हो सकता, क्योंकि कौन आया है? खुदा ने आपको विजिट करना है कि आप उसके हुजूर में उसकी वर्शिप के लिए आए हैं। सो जब आप आए तो इसलिए ना आए कि लोग आए हैं या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, इसलिए आए कि खुदा वहां आएगा, खुदा आपको विजिट करेगा। इसलिए मुझे और आपको अपनी तरजीहात जो है वो दुरुस्त करनी है। हमें चीजों को उनकी जगह पे लेके आना है। अगर चीज अपनी जगह पे नहीं है तो वो गलत हो जाती है। अगर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के पास चले गए हैं तो ये गुनाह है, लेकिन अगर वही लड़का और लड़की वो शादी में बंध गए हैं तो जब भी वो एक दूसरे के पास जाएंगे, ये ब्लेसिंग है, ये खुदा का इंतजाम है, खुदा उन्हें देखेगा, खुदा उन्हें बरकत देगा। एक शख्स है वो सोचता है और वो ड्रग लेना शुरू कर देता है, ड्रग लेगा वो मर जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगी जिंदगी, ये गुनाह है ड्रग्स लेना। लेकिन अगर आपको कोई डॉक्टर मिले और वो बताए कि ये ड्रग्स आपने लेनी है, तो उससे क्या आएगी? नशा लेने से, उसी ड्रग को अपनी मर्जी से लेने से मौत आएगी, डॉक्टर की मर्जी से लेने से शिफा, मौजूदा आएगी, जिंदगी आएगी, सेहत आएगी। सो डिपेंड करता है चीजें जो है वो किस रिदम में आप जिंदगी में ले रहे और होने दे रहे हैं।
وہ ریدم آپ کو بتائے اور ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کس طرح. سو ہمیں اپنی پریورٹیز جو ہیں ان کو, ترجیحات جو ہیں ان کو ہی صرف سیٹل نہیں کرنا. ترجیحات تو ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے میری ترجیح یہ ہو کہ میں نے اٹھتے ہی جو ہے موبائل پہ کوئی ڈرامہ دیکھنا شروع کر دینا ہے, کوئی سیریز دیکھنی شروع کر دینی ہے, سگریٹ پینی شروع کر دینی, شراب پینی, واٹس ایور. ترجیحات ہونا کافی نہیں ہے, درست ترجیحات ہونا چاہیے. صرف پریورٹیز کی بات نہیں ہے. That should be the correct priorities. That should be the biblical priorities. وہ پریورٹی جو ہے وہ ایک فریم کے اندر ہونی چاہیے, اور وہ فریم نہیں جو میں سیٹل کرتا ہوں, وہ فریم جو بائبل نے سیٹل کیا ہے. جب آپ اس کے اندر آ جائیں گے آپ کی زندگی میں برکت نئے طریقے سے بننی شروع ہو جائے گی. سو مجھے اور آپ کو درست راستے پہ چلنا ہے. جب آپ ہیرا پہ جاتے ہیں, ساری چیزیں جو ٹھیک ہیں ضروری نہیں کہ وہ میرے لیے فائدہ مند بھی ہوں. کتاب مقدس میں لکھا ہے نا, بہت سی باتیں اچھی تو ہیں لیکن فائدہ مند نہیں ہے. آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں, آپ نے ادھر چرچ آنا تھا, اوکش بیریا سے آپ آئے ہیں, بروما سے آپ آئے ہیں, اب آپ نے چرچ آنا ہے. آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے ایک ایگزٹ لینا ہے, اور اگر آپ اس ایگزٹ کو اوکش بیریا نکلنے کے بعد جو آپ نے ایگزٹ لینا ہے چرچ کا, اس کو اگر آپ نے مس کر دیا ہے تو then you are in trouble. پھر آپ کو جو ہے واپس جو ہے گھوم پھر کے آنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے ایگزٹ مس کر دیا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو خدا کی جو راہ ہے اس پہ چلنا ہے, اور اس راہ پہ بہت سے ایگزٹ آ رہے ہیں, لیکن آپ نے وہ ایگزٹ لینا ہے جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہے. دوسرے ایگزٹ غلط ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن وہ ایگزٹ جو میرے لیے نہیں ہے وہ غلط ہے. آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ ایگزٹ ساری ٹھیک بنایا ہے گورنمنٹ نے ہیرا کے اوپر, لیکن وہ ایگزٹ جو میں نے دینا ہے, اگر وہ میں نہیں دے رہا تو وہ غلط ہے. کیونکہ میں وہاں لے بھی لوں گا, then you have to about مجھے واپس جانا ہے, کیونکہ وہ میرا ایگزٹ نہیں ہے. اور اگر میں لے لے تو میں پریشان ہو جاؤں, میں وہاں نہیں پہنچوں گا جہاں میں جانا چاہتا ہوں. سو مجھے اور آپ کو درست راستے پہ درست ترجیحات کے ساتھ چلنا ہے, پروگریس کرنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور ہمیں کوشش کرنی ہے جو کچھ ہم کر رہے تھے اگر وہ غلط ہے تو اسے چھوڑنا ہے. اور کوئی چھوڑتا نہیں ہے. میں جی اتنی دیر سے فلانے چرچ جاتا ہوں, ہم نے تو کبھی ایسے نہیں کیا. جاتے بھی ہیں چرچ میں, تو اگر وہ غلط کر رہے تھے تو اب چھوڑ دیں اس کو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ایک بہادر لوگوں کا کام ہے. یہ کن لوگوں کا کام ہے جو نیکودیمس جیسی وزڈم رکھتے ہیں. چاہے وہ چھپ کے آیا تھا, وہ سردار, نیک نام, اس کے سیناگوگ کا لیڈر تھا, بڑی بات تھی, یہودی ربی جو ہے بڑی عزت کرتے تھے اس کی, اس کا بڑا نام تھا, بڑا مقام تھا. لیکن جب اس نے 30 سال کے لڑکے کو باتیں کرتے سنا, اس کا نام یسوع المسیح, یسوع المسیح کو بادشاہی کی باتیں کرتے سنا, تو یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے وہ واپس آیا رات کو, اور اس نے پوچھا اس نوجوان لڑکے سے کہ بادشاہی میں داخل کیسے ہو سکتے. اس نے ریئلائز کیا کہ جو چیز ہم یہودی کر رہے ہیں اس کا تعلق خدا کی بادشاہی سے نہیں ہے, اور جو چیزیں خدا نے موسیٰ کو بتائی اور سمجھائی تھیں وہ خدا کی بادشاہی سے تعلق رکھتی ہیں, انہی کا یہ ذکر کرتا ہے. تو ہم نے تو کبھی خدا کی بادشاہی کی بات ہی نہیں کی, ہم تو مذہب کی ریلیجن کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. تو وہ آیا اور اس نے پوچھا, خدا ہم نے کہا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے. اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہا اچھا تو ڈاکٹر بھی ہے, تو پادری بھی ہے, تو تجھے یہ نہیں پتا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ نہیں جی.
خدا کی بادشاہی کا ریولیشن جو ہے یہ خدا کا روح القدس آپ کے اندر ڈالے گا، اور پھر آپ اس کے لیے کوشش شروع کر دیں گے۔ مجھے پتا ابھی چرچ میں لوگ میسیجز سن رہے ہیں کافی دیر سے، میں باتیں کر رہا ہوں خدا کی بادشاہی کی، لیکن دعا یہ ہے میری کہ آپ صرف پیغام نہ سنیں، آپ کے اندر خدا کی بادشاہی کی بھوک لگ جائے، آپ اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہیں، آپ کے کھوجیں، تلاش کریں اس کو۔ ہم بہت سی چیزیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز نہیں تلاش کرتے تو وہ خدا کی بادشاہی ہے۔ یہ وہ ایک چیز ہے جس کی خدا نے کہا تھا اس کی تلاش کرو، اور یہ وہ ایک چیز ہے جس کو چھوڑ کے ہم باقی ہر چیز کی چرچ میں تلاش کرتے ہیں۔ تو پھر ہم کیسے وائز ہوں گے جی؟ ہم کیسے برکت پائیں گے جی؟ ہمیں کیسے مسیح برکت دے گا؟ اس طرح پسند ہے۔ مجھے اور آپ کو خدا کی بادشاہی کی ضرورت ہے۔ آپ کو روٹی، کپڑے، مکان کی ضرورت نہیں ہے، بل پے کرنے کی ضرورت، یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ آپ کی اصل ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی بادشاہی آپ کی اوریجنل ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے اپنا وقت دینا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں، آج یہاں پہ ساروں کو ایک کاپی پینسل دی جائے، کاغذ دیا جائے اور کہا جائے کہ نمبر 1 1 سے 10 تک لکھا جائے، اور دوسری سائڈ پہ 10 چیزیں ہوں، روٹی، کپڑا، مکان، بل، بچے، بیوی، خاوند، خدا، بائبل، دعا، ایک سائڈ پہ یہ چیزیں ہوں اور ایک سائڈ پہ نمبر ہوں، تو کہا جی ان میں سے نمبر کے حساب سے لکھیں۔ تو پہلے نمبر میں کیا لکھیں گے سارے؟ خدا۔ کہنے کی ضرورت نہیں، انڈرسٹوڈ۔ اگر اس لسٹ میں خدا موجود ہے، چاہے وہ 10ویں نمبر پہ لکھا ہوا ہے، تو جب آپ اسے پریورٹائز کریں گے تو آپ نمبر 1 پہ لکھیں گے۔ 2 پہ شاید بائبل ہو سکتا ہے، ضرور آپ لکھیں۔ تیسرے پہ دعا لکھیں، پھر ہو سکتا ہے بیوی یا خاوند لکھیں، بچے، اینڈ سو آن۔ یہ پریورٹی تو آپ بنا لیں گے، جو آپ اپنی کاغذ میں لکھتے ہیں یا پوچھا جائے تو آپ یہی کہتے ہیں۔ لیکن کیسی بات ہے کہ خدا، بائبل، دعا ہماری پریورٹیز ہیں، لیکن ان کو ہم ہفتوں تک کھول کے نہیں دیکھتے۔ اس لیے خدا نے کہا ملاکی کی کتاب میں، اگر میں خدا ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ میری پریورٹی ہے اور آپ ان سے کبھی رابطہ ہی نہیں کرتے، تو آپ اصل میں آپ جوک کر رہے ہیں، آپ مذاق کر رہے ہیں خدا کے ساتھ، آپ مذاق کر رہے ہیں بائبل کے ساتھ، آپ مذاق کر رہے ہیں دعا کے ساتھ۔ یو آر جوکنگ۔ آپ خدا کا تماشا بنا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں it's number 1, 2 and 3 and you never did it. The week has passed. Week گزر جاتا، مہینے گزر جاتے، and you don't do that. It's when I'm joking. اس لیے خدا نے کہا تھا یہ لوگ یوں ہی مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں، حالانکہ ان کے دل مجھ سے پریورٹی میں 1 2 3 پہ مجھے لکھتے ہیں، میرے کلام الہام کو لکھتے ہیں، لیکن دل دور۔ اگر یہاں سویڈش میں ایک روایت ہے، اگر آپ کسی کو کچھ لکھ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے غلط لکھ دیا ہے، تو آپ اس کو کہو نہیں میں جوک کر رہا تھا۔ اٹس اے ٹرمینالوجی، جوک کر مطلب کہ یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ سٹینڈ نہیں کرتی بات، اب جوک۔ تو اگر آپ پریورٹی میں خدا کو لکھتے ہیں اور خدا کے ساتھ کبھی رابطہ نہیں کرتے، پریورٹی میں بائبل مقدس لکھتے ہیں، دعا لکھتے ہیں، اور ہم کبھی نہیں کرتے دن میں، دن میں جوک، اور ہم خدا سے جوک کریں گے تو اس کے لیے بیٹر۔ آئیے اپنے آنکھوں کو بند کیجیے۔ خدا